Hello, everyone. I welcome you all in this another session. So, this is part two of Economy Recap, where we are seeing the most important events of the Indian economy for the last 1 year. All right. चलो शुरू करते हैं. The first news which we are going to take is related with Payment Regulatory Board. All right. So, this has been recently constituted by the Reserve Bank of India, that is RBI. All right. So, few things which you need to know about the payment system in India is that RBI is the regulator of payment system in the country. That is the payment system which is there in the country. It is regulated by RBI under the Act Payment and Settlement System Act of 2007. So under that act, RBI has recently constituted पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड. सो ये न्यूज उसी से रिलेटेड है. So, what is the context that RBI has constituted Payment Regulatory Board under the Payment and Settlement Act of 2007. इससे पहले जो कमिटी थी उसका नाम था बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, दैट इज BPSS. तो इसको सक्सीड कौन कर रहा है? पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड. So, a few things which you need to know about the Payment Regulatory Board. First is composition. So, when we are talking about composition, this is a 6-member committee. All right. That is, 3 is from RBI and 3 is nominated by government. All right. So, similar to Monetary Policy Committee, you can say. So, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं composition, so chairperson is RBI governor. Another ex officio member कौन है? Deputy Governor of Reserve Bank, who is in charge of payment and settlement system. And another member is one officer of Reserve Bank who is nominated by the Central Board of RBI. So 3 members are there from RBI, and another 3 members will be nominated by the central government. They will be nominated by the central government, and these members or these nominated members are expected to be experts in payment system, IT system, cyber security, law, etc. All right. So they should be expert in these system. Government nominated जो members हैं, their tenure will be 4 years. All right, 4 years का tenure होगा. They are not eligible for re-nomination. उनको re-nominate नहीं किया जा सकेगा. And then resignation, if they are trying to give their resignation before their tenure, तो resignations allowed within 6 week का notice period उनको देना होगा. तो 3 members from the RBI and 3 members are nominated by the government. Permanent invitee रहेगा कौन? Principal Legal Advisor of RBI. All right, he will be a permanent invitee. And also RBI may also invite experts, all right, who can be permanent or on can be ad hoc basis for the meeting. All right, so this is allowed. मीटिंग की बात करें तो एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, बोर्ड शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर. कोरम ऑफ द मीटिंग की बात करें तो मिनिमम 3 मेंबर्स आर नीडेड. मिनिमम 3 मेंबर्स आर नीडेड. उन 3 मेंबर्स में कौन होना चाहिए? ईदर द चेयरपर्सन शुड बी देयर, और अगर चेयरपर्सन नहीं है, आरबीआई गवर्नर नहीं है, इन केस ऑफ दैट डिप्टी गवर्नर should be there, and plus 1 nominated member. Right? तो इन 3 मेंबर में आइदर चेयरपर्सन प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स, अगर चेयरपर्सन नहीं है, if in case the chairperson is not there, then the deputy governor plus nominated member has to be there in order to constitute a quorum for the meeting. Decision making, it is based on majority of the votes. All right, majority of the votes में decision making is there. All right, so all the decisions जो भी committee लेगी, that will be based on majority of the votes of the members who are present and voting. And in case of
equality of votes. In case of tie, chairperson is allowed to have a casting vote or second vote, or in case of absence of RBI governor or chairperson, deputy governor will be allowed to have a second vote or casting vote. Right, so decision making is that. Remember that यहाँ पे RBI governor, that is chairperson, do not have any veto power. They are having the casting vote or the second vote, but they are not having the veto power. तो ये ध्यान में रखेंगे. And then assistance of the board को assist कौन करेगा? The board will be assisted by the Department of Payment and Settlement System of RBI. So the Payment Regulatory Board को assist करेगा is their day-to-day functioning, in their functioning, Department of Payment and Settlement System of the RBI. So these are the few things जो कि you should know. And जो हम पेमेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड की बात कर रहे हैं, इट हैज बीन फॉर्म्ड अंडर विच एक्ट? अंडर द एक्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007. Right, so board has been formed to oversee the functioning of the entire payment system in the country. All right, so functioning is to look after, to oversee the entire payment system in the country. So these are the some of the things related to payment regulatory board. Let us move to the next news. Another important news which has been there is that Flipkart, the e-commerce giant, all right, secures NBFC license from RBI. All right, so Flipkart has secured NBFC license from the RBI. All right, what does it mean? That the Flipkart can now independently provide loans. Earlier, Flipkart was providing loans in relation with the different banks or other financial institutions. But after getting the NBFC license from the RBI, Flipkart can themselves provide loans to the customers. All right. So that is there. So Flipkart, so some of the things which you need to know about this is that Flipkart has received NBFC license from the RBI. It has become the first large e-commerce player in India to get the NBFC, non-banking financial companies license from the RBI. अब इसके पाने के बाद how it will help? It will allow Flipkart to directly lend to its consumers. ये direct lending हो जाएगा because now Flipkart has got the NBFC license. उससे पहले या और ई-कॉमर्स जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? दे ऑफर लोन्स, बट कैसे? दे हैव टाई अप्स विथ अदर बैंक्स और एनबीएफसी. दे आर डायरेक्टली नहीं कर पा रहे. They are having a tie-ups, and through that tie-ups, banks and NBFC are giving loans to the consumers of NBFC. Of the e-commerce company. All right. So here we should know a little bit about NBFCs, non-banking financial companies. So जब भी आप financial institutions की बात करते हैं, तो we mostly talk about three major financial institutions, that is banks, NBFCs, and development financial institutions. So these are the three major financial institutions जब हम बात करते हैं, तो banks, NBFCs, and development financial institutions. इसमें one of the major significant financial institution is non-banking financial companies. So these are basically the companies which are incorporated under the Companies Act, and they are engaged in, you can say, credit intermediation. All right. So they supplement credit along with the bank in the economy. So that is what the idea of NBFCs, non-banking financial companies. So they are different from banks. All right. They are different from regular banks. All right. But they are also involved in the activities of deposit taking, activities of lending, activities of investing in government bonds and securities, so on and so forth. All right. यहाँ पे अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, तो क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें टू टाइप्स में वी कैन सी द क्लासिफिकेशन.
वन इज बेस्ड ऑन एसेट एंड लाइबिलिटीज, जिसमें हम बोलते हैं डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। सो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि ऑल एनबीएफसीज टेक डिपॉजिट्स, तो दिस इज नॉट करेक्ट। सो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज एंड नॉट डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, ऑलराइट। सो बोथ आर देयर। डिपॉजिट टेकिंग में भी जो डिपॉजिट ले रहे हैं दैट इज टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट इज नॉट अलाउड फॉर एनबीएफसीज, ऑलराइट। अभी हम जब देख रहे हैं बैंक एंड वर्सेस एनबीएफसीज विल सी। सो यहाँ पे डिपॉजिट टेकिंग में भी इट इज time deposit. Always remember it is time deposit. All right. Fixed deposit or it will be time deposit. Another way of classification of NBFC is based on systemically important. So there are non-deposit taking systemically important NBFCs or other non-deposit taking NBFCs. So this is one of the classification of NBFCs, different types of NBFC you can see. All right. Now, बैंक्स वर्सेस एनबीएफसीज की अब बात करें अगर कि हाउ द एनबीएफसीज आर डिफरेंट फ्रॉम द बैंक्स, क्या एक्टिविटीज एनबीएफसी परफॉर्म करता है, क्या एक्टिविटीज बैंक्स परफॉर्म करता है, एंड हाउ दे आर डिफरेंट, ऑलराइट। तो पहला है, अगर डिपॉजिट्स की बात करें तो बैंक्स आर टेकिंग ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट, राइट, और बोथ टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स आर बीइंग टेकन बाय द बैंक्स। बट हम जब भी हमने जैसे मैंने बात की एनबीएफसी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनबीएफसीज, तो इट ओनली एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट, इट डू नॉट टेक डिमांड डिपॉजिट। सो करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट you cannot open in NBFCs because they do not accept demand deposit. All right. Then next, payment and settlement system. So banks are part of the payment and settlement system. All right. So bank can issue checks. All right. Bank can use the services of NEFT, RTGS to transfer funds from one account to other and so on and so forth. And NBFCs are not part of the payment and settlement system. So NBFCs cannot issue the checkbook or cannot issue check drawn on itself. So NBFCs cannot issue checks. तो ये ध्यान रखेंगे। Another thing is deposit insurance. तो जो भी आप बैंक में अकाउंट में अपने पैसे रखते हो तो up to 5 lakhs it is insured by the RBI. All right, it is insured. That is what the idea. But that is not there when we are talking about NBFC. So deposit insurance is not there when we are talking about the NBFCs. प्रोविजन ऑफ कैश रिजर्व रेशियो या स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात करें तो कैश रिजर्व रेशियो इज नॉट एप्लीकेबल टू एनबीएफसीज बट इट इज एप्लीकेबल टू बैंक्स। एसएलआर की बात करें तो एसएलआर इज ओनली एप्लीकेबल टू डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। बैंक के लिए तो ऑब्वियसली एप्लीकेबल है बट एसएलआर इज ओनली एप्लीकेबल टू डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, राइट। If you're talking about capital adequacy ratio, capital risk और CRAR की बात करें तो no Basel norms, it is applicable to banks. It is applicable to banks. But when we are talking about NBFCs, so capital adequacy ratio, जो we have to maintain the capital to act as a shock absorber, उसकी जो हम बात करते हैं तो that is only applicable to deposit taking NBFCs and systemically important NBFCs, उन्हीं के लिए applicable है और किसी के लिए applicable नहीं है। So these are some of the important differentiator between NBFCs and the banks. तो ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे, these are very important things. अगर आप रेगुलेशन की बात करें तो ओवरऑल एनबीएफसी इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, ये ध्यान में रखेंगे। बट यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे, नॉट ऑल एनबीएफसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ये भी ध्यान रखेंगे। नॉट ऑल एनबीएफसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, सो देयर आर एनबीएफसीज which are regulated by institutions other than RBI. For example, जैसे सेबी रेगुलेट करता है a lot of NBFCs. For example, merchant banking companies, stock broking companies, venture capital funds,
म्यूचुअल फंड कंपनीज, ये सारी चीजों को सेबी रेगुलेट करता है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनबीएफसीज, बट उनको रेगुलेट कौन कर रहा है? सेबी. स्टेट गवर्नमेंट वहीं पे रेगुलेट करती है जब हम बोलते हैं चिट फंड कंपनीज. ऑलराइट. And गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यू कैन से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रेगुलेट करता है जब हम बोलते हैं निधि कंपनीज. तो चिट फंड कंपनीज रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करते हैं. निधि कंपनीज, no, it is regulated by Ministry of Corporate Affairs. So these are also examples of NBFCs. Right. And some of the examples of NBFCs which are regulated by RBIs are these. Right. So investment and credit companies, infrastructure finance companies, etc. So remember that not all NBFCs are regulated by RBI. ये ध्यान रखेंगे एक चीज. Right. So this is related with this part. Another important news is related with asset reconstruction company. Few things have been there. तो पहला था कि in a first oldest asset reconstruction company, that is RCEL, it has filed for an IPO. Alright, तो वो एक important news थी. Another was that Maharashtra cabinet not to close asset reconstruction company Maharashtra government ने बनाई थी because RBI denies license to it. All right. So these were some of the important news related with asset reconstruction company. So asset reconstruction company के बारे में if you're talking about, तो what it does. So it comes into picture because of non-performing asset in the banks. All right. So जब banks में, so bank we are having, so what does bank do? Usually it accept public deposits and it gives loans. It gives loans. And these are the loans when sometimes they convert into non-performing asset. जब उनसे इंटरेस्ट मिलना या प्रिंसिपल अमाउंट मिलना बंद हो जाता है तो उसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. सो अब नाउ जब बैंक्स में अ लॉट ऑफ एनपीए इज एक्युमुलेटिंग, तो उससे बहुत सी चीजें खराब हो सकती हैं. राइट. सो दैट इज व्हाई we the bank wants, or the RBI in general wants to reduce the NPA. Alright, so उन NPA को कैसे रिड्यूस किया जाए या उन NPA को कैसे सारी चीजें वैल्यू निकाली जाए, वहां पे वन ऑफ द थिंग इज कम्स इनटू पिक्चर इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज. सो दीज आर द कंपनीज जिनका काम ही यही होता है, दे टेक NPA from the banks, right, or the other financial institutions, and they try to prioritize, or they try to get the value of NPAs. Right, so these are the asset reconstruction companies, are the companies which are taking the non-performing assets from the other financial institutions and trying to recover its value. ठीक है. बिकॉज बैंक का जो मेन काम है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय द बैंक इज एक्सेप्टिंग द पब्लिक डिपॉजिट्स एंड गिविंग आउट द लोन्स. ऑलराइट, तो बैंक का मेन काम ये नहीं है कि बैंक इज ट्राइंग टू रिकवर द एनपीएस. दैट इज व्हाई यू कैन से बैंक एक तरीके से आउटसोर्स कर देती है कि आई एम सेलिंग my NPA to you at a mutually agreed price. All right. Now it is your duty to recover the value of NPA. This is how the uh, asset reconstruction companies normally do. All right. So a few things which you need to know. So these are financial institutions which buy NPA from the bank at mutually agreed prices, and then if it then tries to recover the NPAs, यहाँ पे ARC then try to recover the NPAs independently. All right. Once bank has sold the NPA to ARC, ARC independently tries to recover the NPA. Okay. Another important thing is all the ARC in the country needs to be registered with the RBI.
all right, and they are regulated under the Surface Act, all right, of 2000. They The creation of asset reconstruction company was recommended by Nirsimham 2 committee. All right, it proposed creation of asset reconstruction companies to recover NPAs. All right. Working mechanism, as we have said, कि working mechanism क्या होता है? Banks or NBFCs or the financial institution sell stressed loan to ARC at a discount. All right. So that is what the idea. Then, unless the transaction is entirely in the cash, they are ARC issues security receipt. Security receipt issue कर देती है because no कि till the time we will be able to sell this, उसके बाद ही हम आपको पैसे दे पाएंगे. Alright, then it will be redeemable. ARC also charges bad loan sellers a management fee because they are no managing the NPAs. ये भी एक उनका one of the ways of making the money is that apart they earn from recoveries made and upsides are shared with the selling banks or the NBFCs. All right, so this is what the working mechanism of the ARC. ओनरशिप की बात करें तो एआरसी कैन बी नो पब्लिकली ओन्ड, एआरसी कैन बी प्राइवेटली ओन्ड और एआरसी कैन बी बोथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी एआरसी हो सकता है. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स which you should know about the asset reconstruction company. Let us move on. Another important news which has been there is related with Financial Inclusion Index, which is released by Reserve Bank of India since 2021. So, इस साल the Financial Inclusion Index no, for fiscal year 2024-25 has improved to 67. Like that index value is 67 from the earlier 64.2. All right. So that is what the idea. So financial inclusion index एक बार देख लेते हैं. So what it does, it captures the extent of financial inclusion across the country. तो वो ये क्या signify करता है? Extent of financial inclusion across the country. रिलीज हु इज रिलीजिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स? आरबीआई. कब से कर रहा है? 2021 से कर रहा है. एनुअली रिलीज करता है, पब्लिश्ड एनुअली. ऑलराइट, जो इंडेक्स की वैल्यू है दैट कैन रेंज फ्रॉम 0 to 100. ऑलराइट, 0 signifies complete financial exclusion. ऑलराइट, 0 फाइनेंशियल इंक्लूजन है. 100 represent full financial inclusion. It represent full financial inclusion. Alright, so अगर इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, it signifies increase in financial inclusion in the country. ठीक है. Another important thing which you should remember that index has no base year. Alright, so it reflects the cumulative progress over time. ठीक है, तो ये बेस ईयर नहीं है, इनका कोई बेस ईयर से वैल्यू जनरेट नहीं कर रहा है. नाउ इफ यू सी 2025 में द वैल्यू इज 67. 2024 में द वैल्यू वाज 64.2 एंड जब 64.2 जब 2021 में व्हेन वी स्टार्टेड द वैल्यू वाज 53.9. सो इट हैज बीन इंक्रीज. एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे कि दिस इज इंक्रीजिंग year on year. All right, there has been a continuous increase. All right, so these things you can see. Methodology की बात करें कि how it is calculated, क्या different parameters क्या हैं. So financial inclusion index has 3 broad parameter: access, uses and quality. All right, access, uses and quality. Access basically represent the, you can say, supply side of financial inclusion. All right, कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, लोगों के आसपास बैंक है कि नहीं है, ऑल दोस थिंग्स, दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज एक्सेस. उसका वेटेज कितना है इंडेक्स में? 35%. 35% is the weightage of the access parameter. Second parameter is uses. Second parameter is uses, which reflect the demand side of the financial inclusion. And the third parameter is quality.
राइट। सो यूजेस का अगर हम वेटेज की बात करें तो इट इज 45%। सो मोर नो हाईएस्ट वेटेज किसका है? यूजेस का है। क्वालिटी का क्या है? 20%। तो अगर इफ यू ट्राइंग टू सी, right, so access is 35% weightage, uses is 45% weightage, and quality is 20%। इसका सब इंडेक्स देखें तो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग है कि नहीं है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, पेंशन फैसिलिटीज है कि नहीं है, इंश्योरेंस है कि नहीं है, दैट इज द सब पैरामीटर्स अंडर द एक्सेस पैरामीटर। यूजेस के अंदर हम देखें तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट, डिजिटल, पेंशन एंड इंश्योरेंस, ये सारी चीजें यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्वालिटी में बोले कि हाउ मच पीपल आर अवेयर अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी इज वन ऑफ द देयर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड इनइक्वालिटी। So these are the sub parameters you can say under the broad parameters of quality. All right. So ये this you need to keep in mind. All right. If you try to see कि some of the efforts or some of the steps taken by the government, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया है, गवर्नमेंट ने क्या चीजें की हैं टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स दे हैव डन। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019 टू 24, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है 2020 टू 25, देन डिफरेंट स्कीम्स, डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स रही है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, राइट, अटल पेंशन योजना, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स स्कीम जो है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसके 10 साल हो चुके हैं, राइट, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑल दोस थिंग्स जो गवर्नमेंट कर रही है, किसान क्रेडिट कार्ड फॉर द फार्मर्स, राइट। सो वो सारी चीजें कर रही हैं। So these are some of the steps you can say taken by the government to increase the or to promote the financial inclusion in the country. तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। Another important news which is related with RBI have reduced the priority sector lending norms for a small finance bank. All right. सो 75% की जो लिमिट थी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म की, उसको 75% से 60% कर दिया है फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो पीएसएल नॉर्म्स की लेंडिंग नॉर्म्स की रिक्वायरमेंट थी, उसको 60% कर दिया है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। ऑलराइट, तो दैट इज व्हाट द आइडिया कि इनिशियल अर्लियर गाइडलाइंस क्या थी? Small finance bank to lend 75% of the adjusted net bank credit, or you can say the बैंक का जो क्रेडिट है उसका 75% they have to lend towards the public sector lending, alright, priority sector lending, alright। तो प्रायोरिटी सेक्टर जो एरियाज होंगे उसी में लेंड करना था। इस 75% में भी दो तरीके से करते थे। 40% was a kind of mandatory lending, right? It should be allocated to different subsectors under PSL. तो PSL के अंदर different subsectors थे, उनकी जो लिमिट होती है उसमें 40% आपको करना है, right? And the remaining 35% was kind of flexibility provided to small finance bank. So it can be allocated to one sector or more than one sector of priority sector lending, especially seeing the how the SFB or small finances bank is working, उनकी कहाँ पे competitive advantage है, उसी के बेस पे उन priority sectors में they can give. Alright, so 40% was allocated mandatorily to different subsectors and 35% maybe one priority sector में चला गया, maybe more than one में चला गया, उस हिसाब से where small finance bank has a competitive advantage. Now जो revised guideline, जो अभी guidelines आई है उसमें क्या किया गया, what are changes? तो पहला ये 75% से it has come down to 60%. तो 75% की लिमिट थी उसको 60% कर दिया। How? अर्लियर जो 40% था दैट हैव रिमेन्ड द 40%, वो मैंडेटरी है। इट शुड बी एलोकेटेड टू डिफरेंट सब सेक्टर्स अंडर द पीएसएल। तो 40% तो मैंडेटरी है, बट जो 35% हमारा फ्लेक्सिबिलिटी थी
उस 35% को रिड्यूस करके वी हैव गॉन टू 20%. So that is what has changed from 75% to 60%. Alright, ये 35% को ही चेंज करके 20% कर दिया गया. Alright, so this is how it has changed. स्मॉल फाइनेंस की बात करें अगर इसी में देख लेते हैं something related with small finance bank also. So these are differentiated bank. They are not the universal bank. They are not universal banks. All right. So स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, एरिया ऑफ ऑपरेशन थोड़ा सा कम होता है इनका in related to universal bank. That is why they are called as differentiated banks. So small finance banks are an example of differentiated bank. इनका जो मेन पर्पस था इस्टेब्लिश करने का, that was to promote the financial inclusion in the country, all right, to provide services to unbanked or you can say underserved regions of the country. ये मेन इनका ऑब्जेक्टिव था फॉर विच दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड, टू प्रोवाइड फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन. किस कमिटी के रिकमेंडेशन के बेस पे दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड? नचिकेत मोर कमिटी. राइट, नचिकेत मोर कमिटी हैज रिकमेंडेड फॉर क्रिएशन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो दे आर registered under the Companies Act and they are given license under the Banking Regulation Act of 1949. So, a lot of questions may be asked related with a small finance bank and payment bank, the two examples of, you can say, differentiated banking. So, some of the activities which they performs, small finance bank performs are, they can accept all type of deposits. अगर आप पेमेंट बैंक में देखोगे तो they can only accept the demand deposit. They cannot accept the time deposits. Alright, तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि here they can accept all time of deposit, demand deposits and time deposits. यहाँ पे deposit insurance facility is also available. They can issue debit card and credit card. Payment bank cannot issue credit card because they cannot lend. यहाँ पे they can lend. Small finance bank can lend. Focus is on small lending. All right, focus is on small lending. They can provide remittances services, mobile payment, transfers, purchase, net banking, and third-party transfer. All these things they can do. They can distribute products such as mutual fund, insurance, and third-party loans. They can also act as a banking correspondent for other banks. So these are the activities which are allowed. All right. तो comment करके बताइए whether FDI is allowed for the small finance bank or not. All right. You can tell me. All right. So these are the few things which are related with a small finance bank. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करें तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में होता क्या है? RBI designate few sectors as priority sectors और mandates बैंक की इन sectors को आपको mandatorily lend करना है. That is what the idea of priority sector lending. All right. So banks are mandated by the RBI through priority sector lending guidelines कि कुछ सेक्टर्स को आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर्स बना दिया है. नाउ बैंक हैज टू मैंडेटली लेंड टू दोज सेक्टर्स. तो यही आइडिया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का. ऑलराइट, कौन रेगुलेट करता है इंडिया में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? आरबीआई. ऑलराइट, आरबीआई करती है. ऑलराइट, सम ऑफ द सेक्टर्स व्हिच आर designated as priority sectors: agriculture, MSMEs, education, housing, renewable energy, export credit, and social infrastructure. So ये सारे sectors come under the priority sectors. All right. Then PSL targets किसके किसके लिए available है? Commercial banks, all right, public sector bank, private bank, regional rural banks, स्मॉल फाइनेंस बैंक इनके लिए भी एप्लीकेबल है. अभी 75% से 60% कर दिया गया है. प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इसके लिए भी PSL norms are applicable as well as foreign banks. Remember that
Payment bank, payment bank, all right. Since they cannot lend, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स आर नॉट एप्लीकेबल टू देम, क्योंकि वो लेंड ही नहीं कर सकते. All right, so this you need to keep in mind. All right, let us see the next news. Another important news is that India's first national household income survey will be conducted in 2026. So, what is the news? That National Statistical Office under Ministry of Statistics and Program Implementation has said that it will launch India's first National Household Income Survey, NHIS, from February 2026, right? Providing a comprehensive picture of household earning across the country. All right. So, pehla, India's first national household income survey will be conducted in 2026. कुछ चीजें जो इसके बारे में महत्वपूर्ण हैं. So, it will be first ever pan India survey. So, entire India will be covered, where the focus is on measuring household income. फोकस इज ऑन मेजरिंग हाउस होल्ड इनकम. यहाँ पे भी एक और चीज इंपॉर्टेंट है. ये जो हाउस होल्ड इनकम बोल रहे हैं, ये खाली सैलरीज वाली बात नहीं कर रहे, उसके बियॉन्ड भी बात कर रहे हैं. तो ऑल सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम विल बी कवर्ड, be it salaries or wages, be it farming and small businesses, be it self-employment or casual labor, be it remittances or pensions. ये सारी हाउस होल्ड इनकम का मेजरमेंट करेगा ये सर्वे. तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज नॉट दैट कि ये खाली सैलरीज को मेजर कर रहा है या खाली पेंशन को मेजर कर रहा है. इट इज मेजरिंग एंटायर थिंग. It will provide information on people's living condition and income expenditure pattern. तो ये भी एक चीज से पता चल जाएगा. Another important thing is that it will allow for interpersonal comparison of incomes and analysis of sources and pattern of income generation. तो income generation का क्या source है, उसका क्या pattern है, interpersonal comparison of incomes भी ये helpful रहेगा करने के लिए. तो ये सारी चीजें important है when we're talking about नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे. ठीक है. अनदर एक दो और सर्वे की है, AIDIS एंड SAS. राइट, ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे एंड सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे. ये भी सर्वे की बात हो रही है, विच विल बी डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट द आइडिया. सो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं. और व्हेन वी टॉकिंग अबाउट AIDIS और ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे, ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सर्वेज ऑन हाउस होल्ड फाइनेंस. इंडिया में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वे, बहुत सिग्निफिकेंट सर्वे है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हाउस होल्ड फाइनेंस. ऑब्जेक्टिव क्या है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस? To generate reliable estimates on assets, indebtedness and investment pattern. And वो investment pattern both physical and financial asset of the household sector. Alright, so asset कितना है, debt कितना है, investment pattern क्या है household sector का, ये सारा इस सर्वे में कैप्चर होता है. अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ओरिजिन देखें तो इट ओरिजिन्स गो बैक टू ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे 1951-52 एंड इट वाज लेटर एक्सपेंडेड टू कवर बोथ डेट एंड इन्वेस्टमेंट इन 1961-62 में. जो पहला दो सर्वे था दैट वाज कंडक्टेड बाय RBI, उसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ही इस सर्वे को कर रही है. इट इज यूजली डन फॉर डन इन 10 years. ऑलराइट, once in 10 years conduct करते हैं. Earlier survey was done in 2019. ठीक है. So it provides critical data on household indebtedness and asset ownership across both rural and urban areas. ये भी ध्यान रखेंगे, both rural and urban areas में डिफाइन करता है. नेक्स्ट सर्वे जो हम बात कर रहे हैं, सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे, ऑलराइट, of agricultural households. So it was first launched in 2003
टू असेस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मिंग कम्युनिटीज। उसके लिए ये बात कर रहे थे, फार्मिंग कम्युनिटीज की क्या इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसके लिए ये सर्वे लॉन्च किया गया था। 2013 में सर्वे को एक्सपैंड कर दिया गया टू कवर ऑल द एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड। राइट, तो ये सारा हो गया। इट वॉज फर्दर स्ट्रेंथन इन 2019 राउंड। अब अगर हम देखें, इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट इनटू लाइवलीहुड्स ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स। राइट, तो सारा कुछ ये बताता है ऑफ द लाइवलीहुड्स ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स। राइट, क्या क्या एस्पेक्ट कवर हो जाता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे? हाउसहोल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, indebtedness level and access to credit, लैंड एंड लाइव स्टॉक ओनरशिप, ये सारा इस सर्वे में रहता है। क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम एंड क्रॉप इंश्योरेंस, ये सारी चीजें इस सर्वे में कवर हो रही हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे, दैट इज SAS फॉर एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है। अनदर thing which has been in the news for a very long period of time is related with stable coins. Right, this is one type of cryptocurrencies जिसकी वैल्यू स्टेबल रहती। Right, one of the most you can say negative part of Bitcoin is that उनकी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। राइट, ऊपर नीचे होती रहती, कम ज्यादा होती रहती। दैट इज व्हाट द आइडिया। उसको ओवरकम करने के लिए वी हैव स्टेबल कॉइन्स। तो इससे रिलेटेड न्यूज क्या है कि आवर RBI गवर्नर हैज अर्ज्ड द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड टू प्रमोट CBDC, राइट, ओवर द स्टेबल कॉइन्स। राइट, सो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को प्रमोट करना है ओवर द स्टेबल कॉइन्स, ये बात हुआ है। So, in the IMF World Bank annual meeting, RBI governor, that is Mr. Sanjay Malhotra, urged the central banks to promote CBDCs instead of stable coins for, especially for cross-border payments. तो थोड़ा देख लेते हैं stable coins and all those things. तो stable coins, when you are talking about, see, when you are talking about cryptocurrency, right, cryptocurrency, the decentralized currency, based on blockchain, जब आप बात कर रहे हैं, तो one of the very concerning thing related with cryptocurrency is that उसकी वैल्यू बहुत जल्दी ऊपर नीचे होती रहती। there is lot of change in their values। तो उसी को ओवरकम करने के लिए what is there is stable coins। So these are the categories of cryptocurrencies which have a stable value, all right, which have a stable value। क्यों stable value रहते हैं? Because their value is now you can say pegged on an external reference। Say dollar based, it is backed by dollar, it is backed by oil prices, or it is backed by, let us say, oil, it is backed by gold। तो इसके कारण ये जो स्टेबल कॉइन्स की वैल्यू रहती है, दैट इज स्टेबल बिकॉज इट इज based on the value of external reference। So that external reference can be US dollar, that external reference can be gold, that external reference can be oil। All right, so that is what the main idea of stable coin। All right, so it is a type of cryptocurrencies जिसकी वैल्यू थोड़ी स्टेबल रहती है। All right, so that is what the idea। So backed by US dollar, backed by gold or oil। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, जैसे तीथर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेबल कॉइन इज तीथर विच इज बैक्ड बाय US डॉलर। तो USD कॉइन, ट्रू USD, पेपल USD, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल कॉइन। राइट, अगर आप यहाँ पे एडवांटेज की बात कर रहे हैं, व्हाट आर सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ स्टेबल कॉइन्स, तो जैसे मैंने बोला कि इन कंपैरिजन टू क्रिप्टो करेंसी जिसकी वैल्यू बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत मूव होती रहती है, हियर द वैल्यू इज स्टेबल।
सो अगर वैल्यू स्टेबल है तो दे कैन बी यूज्ड फॉर डे टू डे ट्रांजैक्शन बिकॉज दे आर मेंटेनिंग देयर वैल्यू। ऑलराइट, और क्रिप्टो करेंसी की प्राइस वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो दैट इज व्हाट द आइडिया। Another is all the advantage of cryptocurrency. They are based on blockchain technology. They can be programmed. All right. They can be, used for uh, transfer of money. कोई storage का झंझट नहीं है. All right. They can be easily held. So they are easy to hold directly. Settle transactions quickly. Even the cross-border transactions are cheaper and are particularly efficient for cross-border transfers, which can be faster and cheaper than the conventional banking channels. So these are some of the advantage of stable coins. जब आप कंसर्न्स या सम ऑफ द कंसर्न्स की रिगार्डिंग की बात करते हो इन रिलेशन विथ स्टेबल कॉइन्स, तो जैसे स्टेबल कॉइन इज नॉट it is a private money, that is it is being issued by private institution, it is not backed by sovereign guarantee, neither the government nor the central bank is issuing the stable coins, it is basically issued by the private entities। तो पहला यह है कि it is a private money। दूसरा यह है कि इट हैज लिमिटेड यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी, एट प्रेजेंट अभी इतना यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी इसका नहीं है, तो दैट इज अनदर थिंग। अनदर थिंग इज जैसे इंडिया की बात करें, सिंस देर आर सेवरल सिस्टम्स सच एज यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी विच ऑलरेडी प्रोवाइड जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है बहुत काफी कम हो चुकी है। ऑलराइट, तो स्टेबल कॉइन्स का ऐसा कोई एडिशनल एडवांटेज इफ यू से वो वैसा नहीं है कि ट्रांसफर easily you can do the transfer of money through the technologies such as UPI, RTGS and NEFT। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी ध्यान में रखेंगे। अगर सिस्टमिक रिस्क की बात करें कि स्टेबल कॉइन यूज करके व्हाट विल बी द सिस्टमिक रिस्क जिसके कारण बहुत परेशान थे, एंड दैट इज व्हाई द सम ऑफ द थिंग्स व्हिच इज रिलेटेड विद स्टेबल कॉइन्स। तो पहला है कि करेंसी सब्स्टिट्यूशन, लोग रुपया नहीं यूज करेंगे, लोग स्टेबल क्वाइन यूज करेंगे, तो दैट विल रिप्लेस द डोमेस्टिक करेंसी, दैट इज दे विल रिप्लेस द रुपी, यू कैन से। तो पहला है कि करेंसी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, स्टेबल क्वाइन यूज कर रहे हैं, रुपी नहीं यूज कर रहे हैं। राइट, दिस कैन हैव अ लॉट ऑफ इम्प्लीकेशन ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या करता है? ऑलराइट, व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई, मनी सप्लाई को कम करना है तो रेपो रेट इंक्रीज कर सकता है। when economy is not doing well तो रेपो रेट डिक्रीज कर सकता है, so that loans are getting cheaper, consumption बढ़ जाए। But these things of RBI will hold no value if people are not using rupee, they are using stable coin। उसको उसके लिए आप क्या करोगे? तो that is why मॉनेटरी पॉलिसी के लिए ये ज्यादा इम्प्लीकेशंस हो जाएगा कि जो क्रेडिट चेंज करने के लिए जो आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उतने ज्यादा वर्क नहीं करेंगे। राइट, तो दैट इज व्हाट द आइडिया। प्राइसेस कुड बी मोर वोलेटाइल इफ ऑफिशियल करेंसी एंड क्रिप्टो बेस्ड इंस्ट्रूमेंट को एग्जिस्ट इन एवरीडे ट्रांजैक्शंस। तो प्राइसेस थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल हो जाएंगे। राइट, another important thing is that large scale adoption could disrupt banking and credit intermediation। all right, if अभी क्या होता है क्रेडिट इंटरमीडिएशन में, what is the thing, जैसे बैंक क्या करता है, they accept public deposit and using that public deposit they try to give loan। तो बैंक के लिए एक सबसे सस्ता जो से डिपॉजिट्स है दैट इज पब्लिक डिपॉजिट। जो लो कॉस्ट फंड है बैंक के लिए दैट इज पब्लिक डिपॉजिट। ऑलराइट, तो अगर लो कॉस्ट फंड ड्राई अप हो जाए, लेट अस से पीपल आर नॉट यूजिंग मनी, पीपल आर यूजिंग द स्टेबल कॉइन्स, तो उसके लिए बैंक का जो लो कॉस्ट मनी था उनका वो खत्म हो गया, तो हमारा जो क्रेडिट दे रहे होंगे बैंक आगे वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, so all those things, so it there is a risk of credit intermediation if you are using the stable coins। so these are some of the, you can say, systemic risk hai agar if people are more inclined towards using the stable coins। okay, now when you're talking about stable coins and central bank digital currency, so central bank digital currency जैसे
अभी RBI issued e-rupee, all right, तो CBDC. So they have all the characteristics of, you can say, physical currency note. It's just that फॉर्म उनका डिजिटल है, बाकी सारी कुछ सेम है, वट एवर थिंग इज देयर. All right. So it is acting as a legal tender, CBDC. It is liability of RBI. Everything remains the same, which is there for the physical currency. It's just that form has changed. तो जब हम स्टेबल कॉइन्स और CBDC की बात कर रहे हैं, तो स्टेबल कॉइन्स बेसिकली दे आर बीइंग इशूड बाय प्राइवेट एंटिटीज. CBDC is being issued by central banks or government. All right. Stable coins are usually not regulated, whereas CBDC are fully regulated by the central banks. All right. So these are some of the things which you should keep in mind when you're talking about the stable coins, central bank digital currency, etc. Another important thing, few schemes, we can see RODTEP scheme. All right, so export incentivize kar raha hai to promote the exports. We have RODTEP scheme. So government extends RODTEP export incentive schemes till March 31st, 2026. ठीक है. So government has extended the, क्या full form है? Remission of duties and taxes on exported products. Alright. अगर आपको full form पता है तो you can understand what the scheme is. Remission of duties and taxes on exported products. Alright. So government has extended this incentive schemes for exporter until March 31st, 26. Alright. So earlier, no, the scheme had earlier been available until February 5, 2026 तक, ये 2025 तक थी, उसके बाद कुछ दिन तक नहीं चली. फिर गवर्नमेंट हैज सेड दैट ओके, वी आर एक्सटेंडिंग दिस स्कीम टू March 31st, 2026. कुछ चीजें देख लेते हैं. RODTEP स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स. बेसिकली रिम्बर्स कर देती है जो भी आपको टैक्सेस पे किया हुआ है फॉर द प्रोडक्ट, नो, जो भी इनपुट में यूज हुआ है, अगर कोई भी टैक्सेस यूज हुआ है फॉर द प्रोडक्ट विच इज बीइंग एक्सपोर्टेड, यही ये कर रही है. रिइंबर्समेंट ऑफ द टैक्सेस, ड्यूटीज, लेवाइज, जो भी चीज है उनका रिइंबर्स कर दे रही है, अगर वो सारे चीज और किसी मैकेनिज्म के थ्रू रिइंबर्स नहीं हो रहे हैं. तो दिस इज व्हाट द आइडिया ऑफ थिंग्स. ऑलराइट. सो मैकेनिज्म फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, लेवाइज which are currently not being refunded under any other mechanism. All right. So basically, to ensure that exports product are zero rated. तो ये एक इंश्योर करने के लिए है. All right. So that our exports are competitive in nature in the international market. So RODTEP scheme is there. All right. तो scheme intends to compensate कौन सी ड्यूटीज लेवाइज क्या है at the central level, स्टेट लेवल, एट द लोकल लेवल. तो ये भी ध्यान रखिए, खाली ऐसा नहीं है कि सेंट्रल टैक्सेस और लेवाइज को रिम्बर्स करती है. एट द सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल, सारे लेवल के लेवाइज या टैक्सेस को रिम्बर्स करने की बात है इसमें. फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मंडी टैक्स दे रहे हैं, म्युनिसिपल टैक्स दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट्स डॉक्यूमेंट, वैट एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन फ्यूल यूज्ड इन सेल्फ इनकर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा. सारी कॉस्ट, ये सारे जो भी टैक्सेस, ड्यूटीज और लेवाइज लग रहे हैं इस पे, ये रिम्बर्स कर दी जाते हैं. दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ दिस स्कीम. ऑलराइट. कैसे स्कीम होता है? तो ये जो रिम्बर्समेंट होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ई स्क्रिप्ट्स. ऑलराइट. दैट इज फॉर्म ऑफ द ई स्क्रिप्ट्स. ऑलराइट. विच इज ट्रांसफरेबल. ऑलराइट. विच इज ट्रांसफरेबल. मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल क्या है? कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? तो जो भी नोटिफिकेशन आता है RODTEP का, वो कौन सी मिनिस्ट्री निकालती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. बट कैसे चलेगा, कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात आती है, दैट इज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो ये ध्यान रखेंगे. राइट. तो RODTEP जो स्कीम आई थी, इट हैज रिप्लेस द अर्लियर स्कीम जो थी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, दैट इज MEIS. ऑलराइट. इसको रिप्लेस करके RODTEP स्कीम लाया गया था, सो दैट इट बिकम WTO कंप्लायंट, सो दैट इट बिकम
WTO कंप्लायंट, तो उसके लिए ये लाया गया था, राइट? तो दैट इज व्हाट द आइडिया। अनदर थिंग इज सेक्टर स्कोप। तो क्या क्या सेक्टर्स कवर होते हैं? तो इट कवर्स ऑल सेक्टर्स बट फोकसेस ऑन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। जो भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जहां पे एक्सपोर्ट्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वहां पे ज्यादा फोकस है, ठीक है। देन एलिजिबिलिटी बेस, क्या कहा कौन कौन एलिजिबल है? सो एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स, राइट? सो ये सारी कैटेगरीज आर कमिंग अंडर दिस स्कीम। ये सारी लोग एलिजिबल हैं अंडर द RODTEP स्कीम, राइट? सो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक और वर्ड काफी न्यूज में था, लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी, राइट? सो यूपीएससी हैज अ हैबिट ऑफ आस्किंग फ्यू टर्म्स जो कि न्यूज में रहा है, बट इतना ज्यादा न्यूज में भी नहीं रहा है। सो लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी, इसका कंटेक्स्ट क्या है कि तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु हैज ड्राफ्टेड अ रोड मैप टू पोजीशन इटसेल्फ एज ए इंडियाज लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी हब। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी, राइट? So Tamil Nadu is preparing an infrastructure roadmap for the low altitude economy as it seeks to position itself as India's center for drones and advanced aerial mobility. So uh, Tamil Nadu is projecting itself as a hub of low altitude economy in the country. So what is the meaning? So low altitude economy means ग्राउंड से लेके अप टू 3000 मीटर तक इस स्पेस में जो जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, दैट इज रिफर्ड एज लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी, ऑलराइट? से ग्राउंड लेवल से अप टू 3000 मीटर तक जो भी डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, दैट इज रिलेटेड विद लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी, ऑलराइट? सो रिफर्स टू इकोनॉमिक इकोसिस्टम सेंटर्ड अराउंड एक्टिविटीज, बिजनेसेस, सर्विसेज conducted at altitudes below 3000 meters and above ground level, राइट? तो ये कैसे हो सकता है? इसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन नो फ्रॉम द ग्राउंड टू 3000 कब होगा? बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रोन एक्टिविटीज, ड्रोन रिलेटेड एक्टिविटीज, राइट? ड्रोन रिलेटेड एक्टिविटीज, राइट? फॉर एग्जांपल यूजिंग ड्रोन्स, लास्ट माइल कनेक्टिविटी आप यूज कर रहे हैं, यू माइट हैव सीन दैट अमेजन इज यूजिंग ड्रोन्स टू सेंड ऑर्डर्स टू देयर कस्टमर्स। देन लेट अस से एयर टैक्सी की बात कर रहे हैं, अर्बन मोबिलिटी की बात कर रहे हैं। देन लेट अस से एग्रीकल्चर में वी आर टॉकिंग अबाउट यूज ऑफ ड्रोन्स फॉर प्रिसीजन एग्रीकल्चर, फॉर क्रॉप मॉनिटरिंग एटसेट्रा, वहां पे भी बात कर रहे हैं। देन डिजास्टर मैनेजमेंट में वी कैन टेक द हेल्प ऑफ ड्रोन्स, ऑलराइट? कि कहाँ पे फायर फाइटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी यूज हो सकता है। देन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करने के लिए कि पावर लाइन में कहाँ पे कट है, ब्रिजेस में कहाँ दिक्कतें हैं, ऑल दोस थिंग्स वी कैन यूज द ड्रोन। बेसिकली यहाँ पे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी, इट इज मोर रिलेटेड विथ ड्रोन रिलेटेड एक्टिविटीज। सो जो की एप्लीकेशन है वो सारी चीजें यहीं पे बात कर रही हैं कि आप लॉजिस्टिक में यूज कर सकते हो, एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हो, अर्बन मोबिलिटी में यूज कर सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज कर सकते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज थिंग्स रिलेटेड विथ लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी। Another is related with special and differential treatment under World Trade Organization. इसमें न्यूज क्या थी कि चाइना हैज अनाउंस्ड दैट इट विल नो लॉन्गर सीक एक्सेस टू special and differential treatment in the current and new WTO agreements, राइट? तो जो भी एग्रीमेंट्स के लिए निगोशिएशंस होगा, वहां पे चाइना विल नॉट सीक एक्सेस थ्रू स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, राइट? तो लेट अस सी कि व्हाट इज द थिंग। तो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो व्हाट इज देयर? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन is a global forum or global institution, you can say that, which is working for the streamlining the global trade, कि global trade ज्यादा से ज्यादा बढ़े, टैरिफ बैरियर एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स कम हो सकें, सो दैट ग्लोबल ट्रेड बहुत ज्यादा प्रमोट हो सके। इसी में देर इज वन थिंग कॉल्ड एज
स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, बिकॉज ट्रेड प्रमोट करना मींस इकोनॉमीज को ओपन करना। तो जो इकोनॉमीज को जब ओपन करेंगे आप, सो यू कैन बी अ डिसएडवांटेज इफ यू आर लेस डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज विज डेवलप्ड कंट्रीज। तो आपके यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा नो यू आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, राइट, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो उसी के लिए वी हैव अ स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, जहां पे WTO एग्रीमेंट में कुछ स्पेशल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, सो इट गिव्स डेवलप्ड कंट्रीज द पॉसिबिलिटी टू ट्रीट डेवलपिंग कंट्रीज मोर फेवरेबली देन अदर WTO members, and also it provides certain special provisions, all right, which provide special rights to developing countries, all right. So that is what the idea, special and differential treatment, all right. Basically idea क्या है, to have a level playing field in global trade, because let us say developing countries है वो नो कम चीजों का एक्सपोर्ट कर सकती है, बट अगर अपना इकोनॉमी खोल देगी, इट मे बी द केस दैट डेवलप्ड कंट्रीज आर गिविंग देम मोर। तो दैट इज व्हाट द आइडिया, ये स्ट्रक्चरली डिसएडवांटेज है, ऑलराइट। तो दैट इज व्हाट द आइडिया, ऑलराइट। तो टू इंश्योर दैट ट्रेड लिबरलाइजेशन, ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी डज नॉट अंडरमाइन डोमेस्टिक डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। तो यही है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ऑलराइट। तो सम ऑफ द मेजर्स क्या क्या है WTO में विच प्रोमोट्स स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, जैसे जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है, स्पेशल ट्रीटमेंट टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, उनके लिए लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए डिफरेंट टाइमलाइंस डिफरेंट है। देन वी हैव अ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स जो कि प्रमोट कर रहा है। देन टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, एंटी डंपिंग ड्यूटी आप सुनते होंगे, नो गवर्नमेंट हैज पुट एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन चाइनाज नो एक्सपोर्ट्स। काउंटरवेलिंग ड्यूटीज की आप बात करते हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। एंड देन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स की बात करते हो, तो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ये सारी चीजें हेल्प करती है टू फाइट द नो एक्सेसिव इंपोर्ट्स आप में ना आ जाए, बिकॉज यू आर अ डेवलपिंग कंट्री। तो ये सारी चीजें प्रोविजंस है अंडर WTO एग्रीमेंट्स, राइट। तो प्रोविजंस अलाउइंग लॉन्गर टाइम पीरियड, या आप किसी एग्रीमेंट्स में साइन किए हो तो आपको एक टाइम चाहिए टू अलाइन योर सेल्फ थ्रू दैट एग्रीमेंट, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ज्यादा होता है, ऑलराइट, लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ज्यादा होता है, तो लॉन्गर टाइम पीरियड मिल जाता है, ऑलराइट। तो जैसे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट रिडक्शन कमिटमेंट्स इज 10 years, और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए देयर इज नो कमिटमेंट ईयर, राइट, वेयर एज डेवलप्ड कंट्रीज के लिए इट इज 5 years। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट के लिए बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए दे कैन डिले बाय 5 years जो भी है, राइट। तो दैट इज व्हाट द आइडिया, लॉन्गर टाइम पीरियड मिल जाता है आपको, राइट। देन प्रोविजन ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस, सब पे एग्रीमेंट ऑफ SPS है, TBT एंड ट्रिप्स पे सब पे आपको टेक्निकल असिस्टेंस मिल जाता है। तो दीज आर पार्ट ऑफ स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, राइट। तो सम ऑफ द प्रोविजंस विच आर रिलेटेड टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज मेंबर्स क्या क्या है, ड्यूटी फ्री कोटा फ्री मार्केट हो जाता है आपके लिए, नो मार्केट एक्सेस मिल जाता है। एग्जेम्पशंस फ्रॉम स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन, जो भी स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशंस है वो आपसे एग्जेम्प्ट कर दिए जाते हो। तो ये सारी चीजें हेल्प करती हैं टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू ओपन देयर इकोनॉमी, राइट। तो दैट इज व्हाट द आइडिया। अब डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज WTO में कैसे स्टेटस मिलता है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज का एज सच कोई डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करता है WTO, राइट। कोई WTO में ऐसा डेफिनेशन नहीं है। जब आप मेंबर बनने जाओगे तो आप खुद अपना टैग लेके जाओगे कि वेदर आई शुड बी लेबल्ड एज डेवलपिंग कंट्रीज और वेदर आई शुड बी लेबल्ड एज डेवलप्ड कंट्रीज। जैसे इंडिया का केस लीजिए तो इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ एज डेवलपिंग कंट्रीज, बट बहुत से कंट्रीज हैं स्पेशली US and all, they say that no, you have already gone past that stage, so आपको कोई अब स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो दैट इज व्हाट द आइडिया। तो कंट्रीज देमसेल्फ अनाउंस दैट
कि वी आर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, बट क्या है, अदर मेंबर्स कैन चैलेंज दैट डिसीजन, राइट? तो दैट इज व्हाट द आइडिया एट प्रेजेंट। अगर आप देखो, 2/3 ऑफ द डब्ल्यूटीओ मेंबर्स, अराउंड 166 मेंबर्स जो भी हैं, आर डेवलपिंग कंट्रीज, राइट? तो आर डेवलपिंग कंट्रीज। लीस्ट डेवलप कंट्रीज की बात करें तो कैसे रिकॉग्नाइज होता है, तो डब्ल्यूटीओ रिकॉग्नाइजेस least developed countries as those countries which have been designated as such by the United Nations। तो United Nation जिसको designate कर देता है कि these are the least developing countries, so WTO accept that okay these are the least developing countries, right? So these are the few things related with this news. Another important thing is कि WTO agreement on fisheries subsidies has come into force। तो ये एक important था कि agreement on fisheries subsidies has entered into force on 15 September 2025, alright? जब 2/3 मेंबर्स फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिए हैं तो इट हैज कम इनटू फोर्स, और कब आया है, 15 सितंबर 2025 में इट हैज कम इनटू फोर्स। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं। द WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज एस्टेब्लिशेस न्यू बाइंडिंग मल्टीलेटरल रूल। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, इट इज बाइंडिंग, ऑलराइट, इट इज बाइंडिंग multilateral rules for curbing harmful fisheries subsidies, which are key factor in widespread depletion of bird fish stocks, all right? So let us see Geneva package। तो WTO members adopted this fisheries subsidy agreement on fisheries subsidies at the 12th ministerial conference held in Geneva in June 2022। उस समय they have adopted it and now it has come into force after 2/3 of the countries had formally adopted it। ठीक है, एम क्या है, to curb harmful subsidies and to protect the livelihood of fishing communities around the world। Basically, the whole idea of providing the fisheries subsidies or agreement on fisheries subsidy is to curb the harmful subsidies, ऑलराइट? ऐसी सब्सिडीज ना प्रोवाइड करें जिससे इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग हो रहा है, या अनरेगुलेटेड हाई सीज में फिशिंग हो रहा है, या प्रोविजन ऑफ सब्सिडीज रिगार्डिंग स्टॉक्स दैट आर ओवर फिशिंग। तो दीज आर द थिंग्स विच आर प्रोहिबिटेड, कि इलीगल फिशिंग, अनरिपोर्टेड फिशिंग, अनरेगुलेटेड फिशिंग, ये सारी चीज प्रोहिबिट है। ओवर फिशिंग, ऑलराइट, ये भी है। देन फिशिंग इन द अनरेगुलेटेड हाई सी, ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड है। तो इनके लिए जो भी सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, दैट वी हैव टू कर, राइट? तो दिस इज द आइडिया ऑफ एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज, राइट? क्या अचीव करने की बात कर रहे हैं, राइट? टू प्रोटेक्ट people's livelihood and to promote food securities, because unregulated fishings कम होगी, कर्व होगी, ऑलराइट? कमिटी ऑफ फिशरीज की बात कर रहे हैं, टू बी established for reviewing annually the operation and implementation of the agreement, committee of fisheries, right? It will also help in fulfilling the sustainable development goal, especially the sustainable development goal of 14, right? Another important thing is it will take into account the needs of developing and least developed country members। एक और important है कि WTO फिश फंड की बात हो रही है, WTO फिश फंड की बात हो रही है कि it will be established to assist developing and least developing members in implementing the agreement। तो एक फंड बना रहे हैं which is called as WTO फिश फंड। और कैसे इस फंड में पैसे कैसे आएंगे, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द WTO मेंबर्स, राइट? वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। एक और इंपॉर्टेंट थिंग है कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द एग्रीमेंट, राइट? अभी तक इंडिया इज नॉट अ मेंबर। क्यों नहीं मेंबर है? बिकॉज व्हाट इंडिया सेज इज दैट कि WTO members who have provided huge subsidies in the past, all right, and they have been engaged in, you can say, large scale unreported fishing, all right, and they have been responsible for depletion of fish stocks over a period of time, उनके लिए ज्यादा ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, all right?
टू प्रोहिबिट द सब्सिडीज, राइट, बेसिकली पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के बेसिस पे आपने पिछले कई सालों तक हार्मफुल सब्सिडीज प्रमोट किया है, तो अब जो आपके ऊपर कट लगेगा वो ज्यादा लगेगा। ऑलराइट, तो दैट इज व्हाट द आइडिया। तो दैट इज व्हाई इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस एग्रीमेंट। कि उनका कहना है कि लेट अस से डेवलप्ड कंट्रीज दे प्रोवाइड मोर सब्सिडीज, दे आर मोर इंडल्ज इन द अनरेगुलेटेड फिशिंग, हार्मफुल जो सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं वो ज्यादा है, तो अब उनका जो कट लेना चाहिए वो भी ज्यादा है, बेस्ड ऑन द polluter pay principle and common but differentiated responsibilities. So ये इंडिया का स्टैंड है ऑफिशियली, एंड दैट इज व्हाई इंडिया हैज नॉट द मेंबर ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है, सो दिस इज देयर। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज मुद्रा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस ईयर वी आर सीइंग द डिकेडल a decade of existence of मुद्रा योजना। ऑलराइट, तो एक ये इंपॉर्टेंट है मुद्रा स्कीम, मुद्रा योजना। एक एक दो चीजें देख लेते हैं मुद्रा योजना से रिलेटेड। तो कब लॉन्च किया गया था? इन 2015। नोडल मिनिस्ट्री, नोडल एजेंसी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, 100% फुल्ली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आइडिया क्या है मुद्रा स्कीम का? और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो अभी नाम चेंज कर दिए हैं उसका आइडिया क्या है? द आइडिया इज टू प्रोवाइड कोलेट्रल फ्री, all right, no collateral is needed, collateral free loans to non-corporate and non-farm small और micro enterprises। ठीक है, तो कोलेट्रल फ्री लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं टू नॉन कॉर्पोरेट और नॉन फॉर्म स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो ये ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, कोलेट्रल फ्री लोन है। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मुद्रा लोन, क्या क्या कैटेगरीज है? तो 4 कैटेगरी अभी हो चुकी है, शिशु, किशोर, तरुण एंड तरुण प्लस, ये 4 कैटेगरी हो गई है। सो लोन्स अप टू 50,000 शिशु, लोन्स बिटवीन 50,000 to 5 lakh किशोर, लोन बिटवीन 5 lakh to 10 lakh तरुण, एंड तरुण प्लस जो रिसेंटली ऐड किया गया है 10 lakhs to 20 lakhs, वो तरुण प्लस की कैटेगरी में आता है। तो अप टू 20 lakh लोन्स आर बीइंग प्रोवाइडेड अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एंड दीज आर कोलेट्रल फ्री लोन्स। ठीक है, एलिजिबल बोरोवर्स कौन कौन से हो सकते हैं? इंडिविजुअल्स, प्रोप्राइटर्स, पार्टनरशिप फर्म्स, प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स, कंपनीज, पब्लिक कंपनीज और एनी अदर लीगल फॉर्म्स। ठीक है, तो ये सारे लोग इस लोन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देन हु आर द लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस? कौन कौन से लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है? वेरियस मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। राइट, जैसे बैंक्स हो गया, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स आर देयर, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर देयर, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स आर देयर, इंस्टीट्यूशंस आर देयर, एंड एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये सारे लोग मुद्रा लोन डिसबर्स कर सकते हैं। Right, and then government has also formed Mudra, that is micro unit development and refinance agency। तो ये ध्यान रखिएगा कि मुद्रा जो बैंक हम बोलते हैं या कई बार मुद्रा जो है इट इज रीफाइनेंस एजेंसी। ये डायरेक्टली लेंड नहीं करती है टू द इंडिविजुअल्स। डायरेक्टली आपको लेंड करना होगा तो यू हैव टू गो टू द बैंक्स, यू हैव टू गो टू द रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एनबीएफसीज एटसेट्रा। मुद्रा इज सिंपली अ रीफाइनेंस एजेंसी। सो ये एक चीज आप यू शुड कीप इन माइंड। ठीक है, सो लेट अस सी अनदर स्कीम जिसका 10 इयर्स पूरा हो गया है, अमृत स्कीम, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत स्कीम, इट हैज ऑल्सो कंप्लीटेड द 10 years of existence। so कई बार ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी हैज नैक ऑफ आस्किंग दिस 10 years, 50 years, 25 years, 100 years, 200 years वाला थिंग। तो इसको भी देख लेते हैं। लॉन्च्ड इन 2015। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑलराइट, देन इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। बेसिकली 50, यहाँ पे फंडिंग पैटर्न जो है इट इज यूजली 50-50 बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कवरेज क्या है? 500 सिलेक्टेड सिटीज एंड टाउन्स में रिफॉर्म करने की बात हो रही थी। जो पर्पस हम बात कर रहे थे, नो 500 सिलेक्टेड सिटीज एंड टाउन्स में कर रहे थे। क्या क्या चीजें थी?
every household has access to tap with the assured supply of water and sewerage connection. All right, tap water ho, sewerage connection ho. Increase the amenity value of cities by developing greenery and well maintained open space, that is parks etc. And reduce pollution by switching to public transports. ये सारी चीजें बात हो रही हैं करने के लिए when you're talking about reformation and urban transformation. और रिजिवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, जो 500 सेलेक्टेड सिटीज में है वो कैसे होगा, वो इसके थ्रू होगा. ऑलराइट, तो डिफरेंट कंपोनेंट जिस पे फोकस था इस स्कीम का, वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन स्पेसेस एंड पार्क्स, ये सारी चीजों पे इसका फोकस था. थ्रू दैट दे वांटेड टू ट्रांसफॉर्म द अर्बन एरियाज. Then Amrit 2.0 was launched in 2021 for 5 years. 2.0 की बात कर रहे थे, Amrit 2.0. तो it covers all urban local bodies and aims to make cities water secure and self-reliant. तो इससे रिलेटेड बात हो रही थी. One of the key goal under the Amrit 2.0 was universal coverage of sewerage and septage management. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे. ठीक है, इसी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट था कि जल ही अमृत, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था अंडर अमृत 2.0. राइट, सो इट इनकरेजेस स्टेट एंड यूटीज टू मैनेज सीवेज प्लांट्स इफिशिएंटली. जल ही अमृत में अगर आप बात कर रहे हैं सीवेज प्लांट इफिशिएंटली, द एम इज टू ट्रीट एंड रीयूज वाटर सेफली. ये सारी चीजें ध्यान रखिए व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अमृत स्कीम. ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट. एक और इंपॉर्टेंट न्यूज थी कि केरला सीएम हैज अनाउंस दैट इट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एंड द एक्सट्रीम पावर्टी. एक्सट्रीम पावर्टी, राइट, तो दिस हैज बीन अनाउंस्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला. राइट, तो ये देखिए कि इट हैज एंडेड द एक्सट्रीम पावर्टी. क्या कंटेक्स्ट है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला हैज अनाउंस्ड दैट इट हैज बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पावर्टी इन द स्टेट. अगर वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन देखें कि ग्लोबल पावर्टी पे एक्सट्रीम पावर्टी कैसे सब कुछ डिफाइन होता है, तो वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लोबल पावर्टी बेस्ड ऑन 2021 पीपीपी पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो लो इनकम कंट्रीज है, अभी ये डेफिनेशन चेंज हुई थी रिसेंटली, तो इस पे बहुत ध्यान रखेंगे. जो लो इनकम कंट्रीज है दैट इज बेस्ड ऑन $3 पर पर्सन पर डे. लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज है वो कैसे होता है, $4.20 पर पर्सन पर डे. एंड अपर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए जो ग्लोबल पावर्टी डिफाइन करते हैं उसके लिए पावर्टी लाइन क्या है, $8.30 पर पर्सन पर डे. ठीक है, तो जो इंटरनेशनल पावर्टी लाइन की बात करिए, वो अगर आप $3 पर पर्सन पर डे से नीचे कर रहे हैं, देन यू आर कमिंग एज ए बिलो पावर्टी, बिलो इंटरनेशनल पावर्टी लाइन. उसी का मतलब होता है कि यू आर लिविंग इन एक्सट्रीम पावर्टी. उसी का मतलब होता है यू आर लिविंग इन एक्सट्रीम पावर्टी. ऑलराइट, कि आप $3 पर पर्सन पर डे, जो लो इनकम कंट्रीज का भी पावर्टी लाइन है, उससे भी नीचे हो, इट मींस दैट यू आर लिविंग इन एक्सट्रीम पावर्टी. तो मीनिंग ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी क्या हो गया, एनीवन सब्सिस्टिंग ऑन बिलो $3 पर पर्सन पर डे इज सेड टू बी लिविंग इन द एक्सट्रीम पावर्टी. तो ये ध्यान रखेंगे कि कब हम बोलते हैं पर्सन इज लिविंग अंडर एक्सट्रीम पावर्टी. ठीक है, तो फ्यू फैक्ट्स आर देयर. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 838 मिलियन पीपल वर एस्टिमेटेड टू बी लिविंग इन एक्सट्रीम पावर्टी इन 2022. ऑलराइट, using the revised measure, around 838 million people across the world, 83 crores. All right, according to World Bank, extreme poverty in India has fallen from 16.2% in 2011-12 to 2.3% in 2022-23. ठीक है, तो it has fallen from 16.2% to अभी currently 2.3%. meaning an estimated 171 million, around close to 17 crore people has been lifted out of this status. ठीक है, अगर
इंडिया की बात करें तो नीति आयोग पब्लिशेस द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन द कंट्री। एक चीज ये भी ध्यान रखिए, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विच इज रिलीज बाय नीति आयोग, ऑलराइट, इसमें एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लोबल की बात कर रहे हैं तो देर आर 3 डायमेंशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सेम इज देयर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नेशनल वाला, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पे जो indicators हैं under this broad dimensions, that is nutrition and child mortality, then years of schooling and school attendance, and then यहाँ पे 6 हैं, 6 are there। इस केस में तो टोटल 2 + 2 + 6 10 indicators are there यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल में। जब हम यहाँ बात करते हैं तो 2 ऐड हो जाता है। तो हेल्थ में देर इज मैटरनल हेल्थ एक ऐड हो जाता है, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो यहाँ पे बैंक अकाउंट एक ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे इफ यू टेकिंग अबाउट द टोटल इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 12 हो जाता है। दो दिस डिफरेंस यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कि नीति आयोग लाता है। तो ये एक पॉइंट जरूर ध्यान में रखिए which is very crucial. All right. So these were some of the most important thing related with the current affairs for the last 1 year. I hope some value addition has been done to your preparation. All right. I will see you in the next video. Thank you.